Problem number 16. Suppose the amplitude of the simple pendulum having the bob of mass m is theta naught. Find the tension in the string when the bob is at the extreme position. So if you see the simple pendulum, so here it will be the mean position. There is a bob. It will move to the extreme position. This is the extreme position. Okay. Now at the extreme position, velocity will be equals to 0. So this is the tension in the string. Okay. Now since the velocity will be equals to 0, the centripetal force is also 0, isn't it? If the velocity is 0, centripetal force will be 0, right? Now this is the weight of this bob which is acting in the vertically downward direction. Now if this angle is theta naught, this is the amplitude. Whatever they have given in the problem, this theta naught is this particular angle. This is the highest angle that this string is going to make with this vertical. Okay, so this is known as a amplitude angle, you can say. So angle of amplitude or amplitude angle, maximum angle. Okay, now we need to determine what? The tension in the string. This we need to find it out. So for that we will extend this. Okay, now if this is theta naught, this angle is what? Theta naught. Why? Corresponding angles. Okay, now if this is theta naught, this will be mg cos of theta naught, and this in this direction there will be the mg sine of theta naught. Okay, now this component will help this bob to come back to this position and it will move further. Okay, नहीं तो इधर अगर वेलोसिटी 0 है, अगर सेंट्रीपेटल फोर्स 0 है, तो ये वापस कैसे आता है? बिकॉज ऑफ दिस कंपोनेंट ऑफ mg, दिस. Okay, now this component is going to balance the tension. So your answer is what? T will be equals to mg cos of theta naught. और अगर आपको ये इन टर्म्स ऑफ सेंट्रीपेटल फोर्स बताना हो तो आप कैसे बताओगे? प्लस टी minus mg cos of theta naught will be equals to mv square by r, right? Now here v is equals to 0. So if you keep the value as a v0, so this equation will become what? This equation, t is equals to mg cos of theta naught. That is your answer. हे आन्सर आहे तुमचं. ठीक आहे, हे कळलं तुम्हाला? अरे हे कळलं का तुम्हाला? हाँ सर. बघा क्वेश्चन नंबर 17. A person stands on the spring balance at the equator. Suppose this is the equator. Okay, and person stands over here. This is the weight which is acting. उल्टा निकाला मैंने, ऐसा अर्थ निकालूंगा तब भी चलेगा. ओके, so you can draw the diagram like this. यहाँ पे एक person है, so this is the earth. Okay, और the weight of the person will act towards the center of the earth. Okay, यहाँ पे एक्चुअली ये अगर आप पोजीशन कंसीडर करो तो ये पोल है. आप बोलोगे सर ये पोल पे क्यों डायग्राम निकल रहे हो? अरे पोल इक्वेटर पे होगा तभी तो ऐसा ही होगा ना. अगर ये अर्थ है, ओके, the person is actually here, not here. Okay, but his weight will act like this na, towards the center of the earth, and normal reaction will be like this. So by assuming that I am drawing the diagram like this. Okay,
So you understand that. So this will be what? Normal reaction which is going to produce inside the body of the person who is standing on the spring balance. So spring balance is going to measure the normal reaction. So whatever the balance reading, it will be equals to the normal reaction. यहाँ पे लिख देता हूँ, देखो जब कोई भी पर्सन ऐसा बैलेंस पे खड़ा होके उसका वेट चेक करेगा, then the whatever the reading given by the spring balance will be what? Will be the normal reaction reading. Okay, so balance reading will be shown by नॉर्मल रिएक्शन. ओके, ये ध्यान में रखो. अभी देखो क्या पूछा है, पर्सन स्टैंड्स ऑन द स्प्रिंग बैलेंस एट द इक्वेटर. तो इक्वेटर पे है वो, तो ये आपका एफबीडी हो गया फॉर दैट पर्टिकुलर पोजीशन. बाय व्हाट फ्रैक्शन इज द बैलेंस रीडिंग इज लेस देन हिज ट्रू वेट. अभी उसका ट्रू वेट कितना होगा? mg. दिस इज इट्स ट्रू वेट, असली वाला वेट. ओके, बट नॉर्मल रिएक्शन विल नॉट बी इक्वल्स टू दिस ट्रू वेट. ओके, तो वो डिफरेंस फ्रैक्शन क्या है, कैसे निकालोगे? पहले तो ये एफबीडी से अपन है ना सेंट्रीपेटल फोर्स के लिए इक्वेशन बनाएंगे. सो इक्वेशन कम्स लाइक व्हाट? mg is acting towards the center, okay, and this is away from the center. So you have to write plus mg minus n will be equals to what? mv square by r. Now from this equation you can calculate normal reaction. So normal reaction will be mg, okay, minus mv square by r. ठीक है? So this is your equation number 1. Now you need to find out the fraction. Fraction means what? You need to find out the fraction. Fraction means what? True weight minus normal reaction divided by the true weight. That will be the fraction ना. जो असली वाला वेट है उसमें से मैं अगर ये वेट माइनस कर दूंगा, सो आई विल गेट द डिफरेंस. डिफरेंस डिवाइडेड बाय ट्रू वेट विल बी द फ्रैक्शन. ओके, सो mg माइनस mg प्लस इसको r ओमेगा स्क्वायर ले लो, mr ओमेगा स्क्वायर. ओके, सो दैट विल बी यूजफुल. डिवाइडेड बाय mg, सो ये कैंसिल हो जाएगा. तो ये क्या हो जाएगा? mr ओमेगा स्क्वायर डिवाइडेड बाय mg. तो ये कैंसिल हो जाएगा. तो ये हो जाएगा r ओमेगा स्क्वायर बाय g. ओके, अब ये कैलकुलेट करना पड़ेगा फॉर द अर्थ. फॉर द अर्थ r कितना होता है? 6400 किलोमीटर, तो इंटू 10⁻³ मीटर. और ओमेगा, ओमेगा को t के फॉर्म में लगाएंगे. सो ये क्या हो जाएगा? r इंटू 2 बाय t का होल स्क्वायर, ओके, डिवाइडेड बाय g. तो ये कैलकुलेशन करो, r इंटू 4 स्क्वायर डिवाइडेड बाय gt स्क्वायर. ओके, तो ये क्या हो गया? अभी t फॉर अर्थ इज व्हाट? 24 आवर्स. सो 24 आवर बोले तो 24 इंटू 60 इंटू 60. ठीक है, अभी ये कितना होगा? 6400 इंटू 10⁻³, ओके, इंटू 4 इंटू 5 स्क्वायर डिवाइडेड बाय 9. t स्क्वायर कितना होगा? 24 इंटू 3600 का होल स्क्वायर. तो इतना बड़ा कैलकुलेशन होगा ये. ओके, एक मिनट. तो ये होगा कितना होगा रे? 64 इंटू 10⁻², इसको 6 लिख लेते हैं. तो 64 इंटू 4 इंटू 10⁻6 बराबर है ना? देखो 3 5 और ये 1 6. 64 इंटू 4, ये ऊपर वाला पोर्शन हो गया. नीचे वाला क्या है? नीचे वाले में आएगा 9 इंटू 24 इंटू 24 इंटू 36 इंटू 36, और ये 10⁻4 हो जाएगा. तो यहाँ पे 2 बच जाएगा. ठीक है, तो ये कैलकुलेशन करो. तो ये हो जाएगा 1 6
ओके, उसके बाद ये हो जाएगा 1 6, ये हो जाएगा 6। ओके, उसके बाद ये हो जाएगा 8, ये हो जाएगा 18, ये हो जाएगा 4, ये हो जाएगा 18, ये हो जाएगा 2, ये हो जाएगा 3, ये हो जाएगा 1, ये हो जाएगा 3। अभी ऊपर में क्या बचा है? 10⁻² बचा है खाली, बाकी कुछ भी नहीं बचा है। 10⁻² बोले तो 100। ओके, 100 ऊपर बचा है, नीचे क्या बचा है? 9 इंटू 9, 9 इंटू 9, ठीक है। और क्या बचा है भाई? 18 इंटू 18, तो 18 इंटू 18। ये हमको क्या निकालना था? फ्रैक्शन निकालना है, ठीक है ठीक है। ओके, तो ये कितना आता है देखो, तो 100 डिवाइडेड बाय 81 इंटू 18 का स्क्वायर क्या होता है? 18 का स्क्वायर 324। 324। ओके, तो ये कितना आता है आंसर देखो जरा। 100 डिवाइडेड बाय 81 इंटू 324 कितना आता है ये? इसको 50 कर दो, इसको 162। ओके, तो 25 कर दो। 400। क्या 400? 25 डिवाइडेड बाय 81 इंटू 81 आ रहे हैं। 400 कैसे आएगा? 25 डिवाइडेड बाय फ्रैक्शन, इट शुड बी लेस देन 1 ना। कितना आता है? ये लॉग से करना पड़ेगा रे। 0.0038 0.00381। 381। ओके, तो ये हो गया, सो 3.81 इंटू 10⁻⁻3, सो दैट इज योर आंसर, फ्रैक्शन। आंसर बराबर है क्या देखो जरा HC वर्मा में, है क्या किसी के पास? उधर किसी के पास है क्या देखो? अरे है क्या? अरे किसी के पास HC वर्मा हो तो देख लो ना आंसर। किसी के पास भी नहीं है HC वर्मा। सर 3.5 इंटू 10⁻³ है। हाँ ठीक है ना, तो उतना तो चलता है। हमने 9.8 की जगह पे 10 लिया था ना, ये पाई स्क्वायर। ओके, तो वी आर करेक्ट। नाउ हमारा सेकेंड क्वेश्चन देख लो। इफ द स्पीड ऑफ द अर्थ रोटेशन इज इंक्रीज बाय सच एन अमाउंट दैट द बैलेंस रीडिंग इज हाफ इट्स ट्रू वेट, what will be the length of the day in that case? So how to calculate this? How to calculate? बोलो। अरे दूसरा बोलो, कैसे करने का? पहला करके दिया ना आपको, अभी दूसरा आप थिंक करो क्या बोल रहे हैं देखो। इफ द स्पीड ऑफ द अर्थ रोटेशन, अगर रोटेशन, धरती के रोटेशन का स्पीड बढ़ गया बाय सच एन अमाउंट दैट द बैलेंस रीडिंग इज हाफ इट्स ट्रू वेट, तो बैलेंस में कितना रीडिंग दिखाएगा? ट्रू वेट कितना है? mg, तो बैलेंस में कितना दिखाएगा? mg/2। तो आपको पता है अपना FBD से इक्वेशन क्या आया था? n इज इक्वल टू mg माइनस mv²/r। mv²/r। तो ये हमारा इक्वेशन था, सही बात है, सही था ना, यही था। तो नॉर्मल रिएक्शन अभी क्या दिखाएगा? हाफ ऑफ द mg, यानी mg का हाफ दिखाएगा। सो आई विल राइट व्हाट हियर, n इज इक्वल टू mg/2, so which will be equals to mg माइनस mv²/r। सही है कि नहीं? ऐसा आएगा। ये बैलेंस का रीडिंग है ना अभी, हाफ इट्स ट्रू वेट। ओके, तो ये क्या हो जाएगा? mr⍵², इसको mr⍵² ले लो, विल बी इक्वल टू mg माइनस mg/2। ओके,
now mg minus mg by 2 is also mg by 2, mg by 2 और इधर m r ओमेगा स्क्वायर। तो आपको क्या पूछा है वो, व्हाट विल बी द लेंथ ऑफ द डे देन, ऐसा बोला है ना, क्या पूछा है ऊपर, ठीक है, लेंथ ऑफ द डे हमें निकालना है, तो टाइम पीरियड बेसिकली हमें निकालना है। तो कैसे आएगा, r इंटू 2 बाई टी का होल स्क्वायर, ठीक है, विल बी इक्वल्स टू g बाय 2, ठीक। तो ये क्या हो जाएगा, r इंटू 4 स्क्वायर डिवाइडेड बाई टी स्क्वायर विल बी इक्वल्स टू g बाय 2, टी स्क्वायर विल बी इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, ये 4 स्क्वायर इंटू r इंटू 2 डिवाइडेड बाय g, तो ये कैंसिल हो जाएगा, ओके। तो टी स्क्वायर विल बी इक्वल्स टू 4 इंटू 6400 इंटू 10⁻³ इंटू 2, ओके। सो ये हो गया टी स्क्वायर का वैल्यू। अभी टी स्क्वायर का वैल्यू है तो हम पूरा इसमें स्क्वायर में लिखेंगे इधर की टर्म्स, सो इट विल बी 4 इंटू 16, ओके, इंटू ये कितना हो जाएगा 100 और ये 3, सो 10⁻⁴ और ये 20। तो यहाँ पे खाली 20 छोड़ के बाकी सब स्क्वायर्स हैं, सो वी विल टेक द स्क्वायर रूट एज, ये दोनों का क्या हो जाएगा 4, इसका क्या हो जाएगा 4, इसका क्या हो जाएगा 2 और रूट ऑफ 20, ठीक है। सो ये कितना हो जाएगा 8 इंटू 100 और रूट 20 कितना आता है 4√5 ना, नहीं 4 रूट नहीं 4 इंटू 5, सो 2√5, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा 16√5 इंटू 100, सो दिस इज कमिंग आउट टू बी √5 का वैल्यू कितना आएगा, √5 विल बी 2.5 ले लो, 23 कितना आ रहा है 2.23 2.23, तो 1600 इंटू 2.23, तो ये कितना आ रहा है देखो, इसको क्या करो 223 इंटू 16, so this will be 48, राइट, 32 और ये 4 कितना हो जाएगा 36, ओके, ये 32 और ये 3 कितना हो जाएगा 35, so 3568, so length of the day will be 3568 seconds। बरोबर है सर। आंसर क्या है उधर, सर उधर 2 आवर्स दिया हुआ है इन्होंने। क्या, अरे लेंथ ऑफ द डे पूछा है ना, 17th का भी है ना। अरे भाई लेंथ ऑफ द डे पूछा है ना, क्या पूछा है उन्होंने, सर 17th का भी ना। एक मिनट, हाँ 17 का बी, सर इधर 2 आवर्स ही दिया हुआ है। अरे 2 आर कैसे होगा कुछ भी, अरे सेकंड यूनिट क्या दिया है उधर, आवर्स क्या? में दिया हुआ है उधर तो। हाँ कितना आवर्स दिया है वही तो बोलो ना फिर, हाँ सर 2 दिया है 2। 2 आवर्स, हाँ सर। तो हमारा तो 1 आवर आ गए, कैसे रे, कुछ गड़बड़ हुआ क्या इधर, नहीं कहाँ पे गड़बड़ हुआ, एक मिनट, 4 स्क्वायर टी स्क्वायर बराबर तो है, और इधर क्या आएगा g बाय 2 आएगा, तो g बाय 2 ही लिखा है, ये टी स्क्वायर हो जाएगा, ये इधर चला गया, ये 2 लिया था क्या, लिया था ना हमने, ये 2 लिया था और ये 4 स्क्वायर, कैलकुलेशन तो बराबर है, एक मिनट, बराबर है कैलकुलेशन। 4 इंटू 4 इंटू 16, देखो देखो ये एक्चुअली कैसा आता है, r ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू व्हाट, g बाय 2 आता है ना ये, ठीक है।
तो ये ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू जी बाई 2r आता है। तो इसका रूट लेने का है हमें, तो ये आपका हो जाएगा ओमेगा। ठीक है, ये ओमेगा हो गया, ओमेगा इज 2 पाई बाई टी। तो यहां से टी का वैल्यू क्या हो जाएगा, टी का वैल्यू हो जाएगा, क्या हो जाएगा, 2 पाई अंडर रूट 2r बाई जी। अभी ये करते हैं, ये करेंगे तब भी आंसर आ जाएगा। सो 2 इंटू पाई, ओके, अंडर रूट r बाई जी, 2r बाई जी। सो 2 इंटू 6400 इंटू 10⁻³ डिवाइडेड बाय 10, इसको 10 ले लो, ये 2 बचा, तो ये कितना हो जाएगा 2 पाई। ओके, ये बहुत सारा कैलकुलेशन है, ऐसे सम नहीं आते, टेंशन मत लो। सो 10⁻² बचा है, ये क्या है 2 इंटू 64 इंटू 10⁻⁴। तो ये कितना हो रहा है देखो, अभी ये और ये मैच हो गए तो छोड़ दो। तो ये क्या है, इसके रूट क्या आएंगे 64 ना, इसका रूट आएगा 8 इंटू 10⁻², और ये आएगा √2। ओके, तो ये कितना आता है देखो, 16 इंटू 3.142 इंटू 1.414 इंटू 100। तो इसको 14 ले लो और ये मल्टीप्लाई कर दो, तो ये कितना हो रहा है 32। ये कितना आता है रे, करके देखो ना कैलकुलेशन, 32 और ये कितना आया 67। कितना आता है, इधर स्पेस नहीं बचा रे, कितना आता है 16 इंटू 3.142 इंटू 1.414 इंटू 100, कितना आ रहा है ये, अरे 7108. 7108, अभी बराबर आया ना फिर, 7108. 7108 सेकेंड। सो दिस विल बी अराउंड 2 आवर्स, सही है ना। 3600 बोले तो 1 आवर होता है, तो ये 7108 बोले तो अप्रोक्सीमेटली इट हाँ इज सर 2 आवर। 2 hours. तो इधर किधर तो गड़बड़ हुआ है, ठीक है। यू सी दिस कैलकुलेशन, आप सिंप्लीफाई करो इस कैलकुलेशन को बाय दिस, ओके, बाय डूइंग लाइक दिस। वो मत करो, वो लेंदी किया मैंने, ठीक है, उसमें गड़बड़ हो गया। तो आपको लॉजिक समझ में आया ना कैसे सॉल्व करने का है, उसमें शॉर्टकट, कैलकुलेशन में शॉर्टकट बनाओ अपने हिसाब से, ठीक है। 18th वाला देखो, अ टर्न ऑफ रेडियस 20 इन इज, क्या बोल रहे हैं 20 क्या है ये, बुक में क्या दिया है देखो रे, टर्न ऑफ रेडियस 20 मीटर है क्या ये, हाँ मीटर है। हाँ 20 मीटर इज बैंक फॉर द व्हीकल्स गोइंग एट अ स्पीड ऑफ 36 किलोमीटर पर आवर। तो रेडियस दिया है कितना 20 मीटर, ओके, स्पीड कितना दिया है v इज 36 किलोमीटर पर आवर। सो 36 किलोमीटर पर आवर बोले तो 36 इंटू 5/18, so that is what 10 मीटर पर सेकेंड। ये इतना स्पीड है। इफ द कोएफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन बिटवीन द रोड एंड द टायर इज 0.4, so mu is 0.4. What are the possible speeds of the vehicle so that it neither slips down nor skids up? तो बोलो कौन सा फॉर्मूला यूज करूं, कौन सा फॉर्मूला यूज करूं, V minimum आणि V maximum. ओके, फॉर द व्हीकल नॉट टू स्पीड अप, हमने डेरिवेशन देखा है, राइट। डेरिवेशन अभी मैं नहीं बताऊंगा, आपको पता है डेरिवेशन क्या करने का है, ओके। तो दैट डेरिवेशन यू नो। स्पीड अप वाला पहले करते हैं। स्पीड अप वाला फॉर्मूला क्या होता है, v maximum will be equals to अंडर रूट rg इनसाइड द ब्रैकेट क्या आता है रे, बोलो म्यू प्लस Tan टैन theta. थीटा हाँ
डिवाइडेड बाय 1 माइनस म्यू tan थीटा। ठीक है, तो पहले हमारे पास थीटा ही नहीं है तो पहले थीटा निकालो, तो v इज इक्वल टू अंडर रूट RG tan थीटा। यहां से आपको थीटा का वैल्यू मिल जाएगा, v स्क्वायर करो, v स्क्वायर इज 100 और ये r कितना है 20, तो ये हो गया 200। ओके, tan थीटा, तो tan थीटा विल बी हाफ। ओके, 0.5 यू कैन से 0.5 ले लेते हैं। ठीक है, बराबर है क्या, देखो कैलकुलेशन। तो दिस विल बी व्हाट, अंडर रूट r कितना है 20 इंटू 10, ओके, म्यू इज व्हाट 0.4 प्लस 0.5 डिवाइडेड बाय 1 माइनस 0.4 इंटू 0.5। तो ये कितना आता है देखो, अंडर रूट ऑफ 200 और ये अंदर क्या आएगा बोलो 0.9 डिवाइडेड बाय 1 माइनस 0.4 इंटू 0.5, हाउ मच इट इज, ये आएगा 5/10, 5/10 बोले तो 0.2 आता है क्या रे, 0.2 आएगा राइट, 0.2। सो दिस इज कमिंग आउट टू बी व्हाट, अभी ये 0.2 है, ये 9 है, ओके। सो अंडर रूट ऑफ 200 इंटू 9/2, नहीं ये 0.2 ये आएगा, अरे इधर कम आएगा मेरे, 1 माइनस करने का है, इसका 0.2 आएगा, ये 0.8 आता है क्या, 0.8। हाँ ये 0.8 आता है, तो इसको 8 ले लो फिर अभी, तो ये 8 आता है, तो ये कितना आएगा देखो, इसको 100 ले लो, इसको 4 ले लो, तो ये आएगा 10 इंटू 3 डिवाइडेड बाय 2, तो ये कितना आएगा 30 डिवाइडेड बाय 2, सो दैट इज व्हाट 15। 15 आ रहा है क्या, 15 मीटर पर सेकेंड। ओके, सो दैट इज योर वी मैक्स। अभी वी मिनिमम कैसे निकालने का, वी मिनिमम कैसे निकालने का, यहाँ पे माइनस कर दो और यहाँ पे प्लस कर दो। ओके, सो यू विल गेट, यहाँ पे माइनस यानी इसको माइनस करने का म्यू को। ओके, tan थीटा माइनस म्यू 1 प्लस म्यू tan थीटा, ऐसा करने का। तो करो और देखो आंसर क्या आ रहा है, v इज इक्वल टू अंडर रूट RG, r कितना है 20, 200 लिखता हूं मैं, और ये कितना हो गया 0.5 माइनस 0.4, सही है ना, tan थीटा माइनस म्यू 1 प्लस म्यू tan थीटा, म्यू इज 0 पॉइंट कितना है म्यू 0.4 इंटू 0.5। ओके, तो ये कैलकुलेशन करके देखो कितना आ रहा है, अंडर रूट ऑफ 200 और ऊपर बचा कितना 0.1 और नीचे बचा कितना 1.2 होगा। ओके, सो दिस इज कमिंग आउट टू बी हाउ मच, अंडर रूट ऑफ ये हो गया 20 डिवाइडेड बाय 1.2, सो 20 डिवाइडेड बाय 1.2 कितना होता है रे, 200 डिवाइडेड बाय 12, 200 डिवाइडेड बाय 12 यानी अंडर रूट ऑफ ये कितना हो गया 180 म्हणजे 6, ओके 6.80 ये आ रहा है, यानी 16.66, यानी ये अराउंड कितना आ रहा है 4 मीटर पर सेकेंड आ रहा है। सही है क्या, अरे सही है क्या आंसर, ये 0.1 बचा, नीचे क्या बचा 1.2, सही है ना। अरे हाँ सर, बरोबर आहे का आन्सर, किती आलं तुमचं, अरे आंसर कितना आया, अरे आंसर कितना आया,
अरे इधर चैट करके बताओ यार, कुछ तो बताओ। सर 4.08। हाँ तो 4 ही आया ना, 4 मीटर पर सेकेंड। हाँ सर। So your minimum speed is 4 meter per second. Okay. So 4 meter per second is minimum speed. Okay. इसका ज्यादा होना चाहिए भी, और लेस देन कितना आया था अपना, मैक्सिमम कितना आया था, 15 मीटर पर सेकेंड। आंसर देखो उधर क्या है, अप्रॉक्स 4च आले. 4 आणि 15 आले का? हो सर 4 आले. अरे HC वर्मा मध्ये काय आन्सर दिले? आता इथून पुढे मी इथे आन्सर पण लिहित जाईन, म्हणजे आपल्याला बरं होईल. किसी के सर पास त्यांनी किलोमीटर पर आवर मध्ये दिले. हा मग तुम्ही कन्वर्ट करा ना, 4 चे येईल 15 किलोमीटर पर आवर, आणि हे किती येईल 45 किलोमीटर पर आवर. त्यांचे किती आले? तर त्यांचं 54 किलोमीटर पर आवर आले. 54. एक हा मिनिट. सर. हा 54 सॉरी 36 ना, 18 किलोमीटर म्हणजे, आणि हे किती आहे, अराउंड 18 आहे का? नाही 18 नाही, हे 15 15 आहे सर. हे 15 आणि 15 ते 54 आलं ना. हा हा. हा मग बरोबर आहे ना. तुम्ही कन्वर्ट करा ना, बघा ना आता 15 किलोमीटर पर आवर जर तुम्ही मीटर पर सेकंड मध्ये केलं तर काय करावं लागेल, 15 इंटू 5/18 करायचं याला. मग 5/18 केलं तर तुमचा आन्सर किती येतं, 75 डिवाइडेड बाय 18. तो 75 डिवाइडेड बाय 18 किती आएगा, कितना आएगा, 4 पॉइंट कुछ तो आएगा, 4 पॉइंट समथिंग मीटर पर सेकेंड. ओके, दैट विल बी योर आंसर. एंड 54 इज व्हाट, 54 इंटू 5/18 दैट इज व्हाट, 15 मीटर पर सेकेंड. सही आहे ना? कळलं का? आन्सर सेम आहे, आपण फक्त मीटर पर सेकंड मध्ये काढले, त्यांनी किलोमीटर पर आवर मध्ये दिले. हा सर. क्लियर? ओके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं. ये आपको समझ में आया? ये एक्चुअली डेरिवेशन इसका मैंने आपको करके दिया है, तो इसलिए मैंने डेरिवेशन नहीं लिया, खाली क्वेश्चन लिया. आपको ये फॉर्मूला पता होना चाहिए. देखो, अ मोटरसाइकिल हैज टू मूव विद अ कांस्टेंट स्पीड ऑन अ ओवर ब्रिज which is in the form of the circular arc of radius r and has the total length l. तो एक सर्कुलर आर्क के फॉर्म में एक रोड है, ठीक है, ऐसे समझ लो, ब्रिज है, और उसके ऊपर मोटरसाइकिल हैज टू मूव विद अ कांस्टेंट स्पीड ऑन दिस ओवर ब्रिज इन द फॉर्म ऑफ, हाँ ओके, इसका रेडियस आर है, इसका रेडियस आर है. ओके, सो दिस इज द रेडियस. देन क्या बोल रहे हैं, हैज द टोटल लेंथ ऑफ एल, इसका टोटल लेंथ एल है. ठीक है, ये जो टोटल लेंथ है वो एल है. सपोज द मोटरसाइकिल स्टार्ट्स फ्रॉम द हाईएस्ट पॉइंट, यहां से चालू हुआ मोटरसाइकिल, तो मोटरसाइकिल स्टार्ट्स फ्रॉम द हाईएस्ट पॉइंट, और क्या बोल रहे हैं, व्हाट कैन इट्स मैक्सिमम वेलोसिटी बी फॉर विच द कॉन्टैक्ट विद द रोड इज नॉट ब्रोकन एट द हाईएस्ट पॉइंट. तो यहाँ पे इसकी मैक्सिमम वेलोसिटी कितनी होनी चाहिए, so that the vehicle is not going to break the contact with the surface of the road, you can say. Okay, तो ये इसके लिए आपको एफबीडी बनाना पड़ेगा. एफबीडी बनाया तो क्या निकलेगा, ये यहाँ पे मोटरसाइकिल है, इसका वेट कैसे एक्ट करेगा, वर्टिकली डाउनवर्ड, mg, और इसके अंदर नॉर्मल रिएक्शन ऐसे आएगा n. ओके, तो अभी क्या करने का, अभी mg is providing what, necessary centripetal force, n is opposition, so plus mg minus n will be equals to mv square by r. ये आपका इक्वेशन बन जाएगा ऑफ द सेंट्रीपेटल फोर्स. सही बात है. अभी आपको क्या बोल रहे हैं, क्या बोल रहे हैं, व्हाट कैन इट्स मैक्सिमम वेलोसिटी बी फॉर विच द कॉन्टैक्ट विद द रोड इज नॉट ब्रोकन एट द हाईएस्ट पॉइंट. नाउ रिमेंबर दिस थिंग, इफ द कॉन्टैक्ट विद द रोड is broken, then in that case the normal reaction will becomes zero. तो हम क्या करेंगे, मैक्सिमम स्पीड हमें निकालना है, तो हम क्या करेंगे, इस इक्वेशन में n is equals to 0 पुट करके जो स्पीड आएगा that will be the maximum speed. Okay, so this will be what, mg, ये तो 0 हो गया, और mv square by r. तो आपका आंसर डायरेक्टली क्या आ रहा है, v max, ये v max है तब अंडर रूट आर जी.
बस खत्म, V max is equals to under root RG. So that will be your answer, correct? So this is the first answer that you have got. अभी second वाला देखो, second वाला. If the motorcycle goes at a speed of 1 by root 2 times the maximum speed, देखो maximum speed हमें क्या मिला? Under root RG. और ये क्या बोल रहे हैं, अभी आपके मोटरसाइकिल का जो स्पीड है V, that is under root RG by 2. अगर ये स्पीड होगा तो where the vehicle, the motorcycle is going to lose the contact. तो obviously इससे अगर अभी ये तो इससे कम है ना स्पीड, तो मोटरसाइकिल थोड़ा सा जाएगा, थोड़ा सा डिस्टेंस पार करेगा और उसके बाद लूज करेगा कांटेक्ट. ओके, सो लेट दिस डिस्टेंस बी द डिस्टेंस दैट इज गोइंग टू बी ट्रैवल. सो ये डिस्टेंस अपन इसको ले लेते हैं s. So let s be the distance, okay, before the motorcycle is going to lose the contact with the road surface. ठीक है, ये हमने assume किया, तो ये हमारा इधर का थीटा हो जाएगा. ओके, तो यहाँ पे मोटरसाइकिल आएगा तो नॉर्मल रिएक्शन कौन से डायरेक्शन में रहेगा रे? ऐसा, सही है कि नहीं? और mg तो ऐसा ही रहेगा. अरे नॉर्मल रिएक्शन ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द सरफेस ऑफ द कॉन्टैक्ट होता है कि नहीं? होता है ना. हाँ सर. तो यहाँ पे ऐसे ही रहेगा ना, यहाँ पे ऐसा तो ऐसा परपेंडिकुलर, यहाँ पे परपेंडिकुलर ऐसा आएगा. ओके, ये तो mg है, ये mg है, ये थीटा है तो ये भी थीटा है, ये थीटा है, ये mg है, तो इधर का कंपोनेंट कौन सा आएगा बोलो फटाक से? mg cos ऑफ थीटा. और यहाँ पे है नॉर्मल रिएक्शन. तो अभी अगर सेंट्रीपेटल फोर्स का इक्वेशन बनाए तो क्या होता है? प्लस mg cos ऑफ थीटा will be equals to, sorry, minus n will be equals to mv square by r.